Hi everyone. So there is a very big announcement from LTI Mindtree, which is LTI Mindtree hiring 2026. It is a on-campus hiring which is announced today and last week in many colleges. Now, on-campus LTI Mindtree hiring is announced. We will be discussing each and everything in this video. So if you guys also have received the notification from LTI Mindtree through on-campus, please let me know in the comment section when you will be having your exam. Okay, you will be having your exam because LTI Mindtree is a good company to work with and it would be a good hiring. You guys can get placed in it. Okay, let's discuss about all the details. So LTI Mindtree hiring 2026, let's start. First of all, this is the eligibility criteria shared by the company, which is saying 2026 batch of BE, BTech, ME, MTech, all branches of engineering can apply. MCA, MSc, 5 years integrated CSIT branches only. All education in full-time regular courses. Okay, so 2026 batch is eligible to participate here in the hiring from BE, BTech, ME, MTech, and the all branches of engineering are eligible to apply in this. Okay, also MSc, MCA 5-year integrated CSIT branches are eligible. Consistent academic record of 60% in 10, 12th and diploma. So 60% is the basic requirement which they have. Appropriate CGPA to percentage conversation to be considered as per the respective university. The score of the important exam would be considered as final. For candidates who have pursued both 10th diploma, marks scored in diploma course will be considered. Initial percentage score declared would be considered for students awaiting re-evaluation results. At the time of recruitment process, there must be no standing arrears. Not more than 2 years academic gap is allowed. So this is the only basic criteria from LTI Mindtree. Okay. Now I'll just try to give you the whole process idea. So I hope this kind of mail or PDF you have received from your college or the pre-placement talk. Let's discuss about this. But first of all, it have it has a lot of rounds. And if you want to prepare, okay, for LTI Mindtree, make sure that you guys can start your early practice. And for the early practice, I will be giving the Arjun mock test series link in the description. Each and every topic is covered here with 1500 plus practice questions. So if you guys can see here, quantitative aptitude, okay, reasoning, verbal, reading paragraph, gamified assessment, pseudo codes, DSA, CS fundamentals, SQL, OOPS, data interpretation, web development, communication assessment, coding questions, and essay writing. Each and everything is present here, which you can use for your practice for any company, not only for LTI, even for any company you can use this. Okay, do a good practice from this mock test. It's a 1500 plus questions collection. Link will be in the description, which you can use for your practice for LTI Mindtree or any other company. So the role which they are offering is graduate engineer trainee. Okay, this is the designation, and the package which they are offering is 4.05 per annum. The hiring and selection process is profile screening, then online assessment, which is aptitude, communication, and technical assessment, then panel interview for technical and HR interview, then final shortlisting. So this is the whole process which they have shared. Okay, now let's discuss about the exam pattern. So this would be your exam pattern. Just see here. So the exam will contain total 130 minutes and a lot of sections. Okay, so in 130 minutes you will be having English comprehension. Okay, so first of all, this English comprehension is basically your reading paragraph. Okay, so there would be some paragraphs and you need to read the paragraph and give the answer based on that. Then there is logical ability, that means reasoning. So reasoning would be there and there will be questions related to your logical reasoning. Then quantitative ability, in this the maths and quant question will be there. Then basic analytical ability, analysis basis based questions will be there. Then computer programming, 35 minutes you will be getting the computer programming question. Okay, computer programming question, that means this is basically your coding. So you will be getting some coding questions here. Okay, then there is computer science section for 20 minutes. You will be getting the MCQ questions on computer science. Then there is spoken English for 20 minutes. So if you guys can see here, it is a very lengthy process, 130 minutes assessment, and each and every topic is covered in the mock test. So see here,
there is English comprehension. Okay, see in the mock test each and every topic is given. Okay, so see here, I'll just show you. Reading comprehension is also we have covered. So see here, reading paragraph, this thing we have covered. Okay, then there is logical ability. Okay, so see here, for logical ability and analytical ability we have provided total 14 mock test and 240 questions are there in reasoning. Okay, so 240 questions are covered here. Then there is quantitative. So also for quantitative we have provided 240 questions. Then computer programming, we provided actual previous year questions with solution, also the coding sheets for coding question. Then computer science. So for computer science, see here, we have provided a lot of MCQ question. So on data, see here, on DSA technical MCQ there are 200 questions available. On CS fundamentals more than 200 questions are available. So each and every topic is covered from the whole test. So for the practice you can definitely purchase the test, mock test for any company, not only for LTM entry, for any company you can purchase. Okay, so this kind of mail would be your test pattern. Okay, and it will be conducted on MCAT platform. Okay, so this is the internal test in which 12 questions in 15 minutes will be there, for the first section, which is your English comprehension. Then for logical ability, 12 questions in 15 minutes. Then for quantitative ability, 12 questions in 15 minutes. For computer programming, sorry, so computer programming is not basically coding. Okay, it is not coding. It is MCQ questions only on basic programming concepts like data structures, algorithms, and object-oriented programming. So it is 25 questions in 35 minutes. Sorry, no coding, no coding. So I was just not informed about this. No coding, only MCQs are there in computer programming. So this is also we have provided in our mock test. Then computer science, 20 questions, 20 minutes. Then SVAR test with 7 section for spoken English. Okay, so this is the full test with the questions I have provided. Thank you so much for watching this video. मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोगों को एक ऐसा मेल रिसीव हुआ होगा। अब अगर आपने मेल को देखा है तो उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है एलटीएम एंट्री के लिए, और ये प्रिपरेशन सीरीज की हमारी वीडियो है, थर्ड वीडियो है। अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है, इसमें लॉजिकल, क्वांट एंड एनालिटिकल एबिलिटी है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर साइंस को हम कवर कर चुके हैं। काफी बच्चों ने बोला था भैया स्पोकन इंग्लिश के बारे में बताओ। तो जो लास्ट ईयर का एग्जैक्ट पैटर्न था वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि स्पोकन इंग्लिश का जो सेक्शन है लास्ट, उसमें आपको क्या देखने को मिलता है। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप एलटीएम एंट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या अगर आप किसी भी कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नो मैटर व्हाट, आप यहाँ पर परचेज कर सकते हो अर्जुन सीरीज को। और अर्जुन सीरीज आपको हेल्प करेगी सभी कंपनीज के प्रिपरेशन के लिए, नॉट ओनली एलटीएम एंट्री, इसमें सब कुछ अवेलेबल है। लाइक इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, वर्बल, रीडिंग पैराग्राफ, गेमिफाइड असेसमेंट, सूडो कोड्स, डीएसए, सीएस फंडामेंटल्स, एसक्यूएल, ओप्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, वेब डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन असेसमेंट, कोडिंग क्वेश्चन, एसे राइटिंग, सब कुछ इसमें एलिजिबल है ए टू जेड। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर केवल एलटीआई एंट्री के लिए, बाकी फ्यूचर में भी कोई और कंपनी आती है तो आप इसको यूज कर सकते हो। और एलटीआई एंट्री में जो भी पूछा जा रहा है आपसे वो भी सब इसमें कवर्ड है। तो मॉक टेस्ट आपको काफी सारे मिलने वाले हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, 1500 प्लस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इसको परचेज कर सकते हो, मॉक टेस्ट हैं सारे के सारे, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं लिसनिंग, डिडक्शन एंड कन्वर्सेशन की। तो जैसा कि एक बार मैं ओवरऑल पर आपको बता देता हूं, तो ओवरऑल लिसनिंग जो डिडक्शन आपका सेक्शन है, ये सेक्शन में आपको देखने को मिलते हैं टोटल 3 क्वेश्चंस। ठीक है, 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एंड ये प्रीवियस ईयर का आपको पैटर्न बता रहा हूं मैं, जो प्रीवियस ईयर पूछा गया था। अब इस साल कुछ चेंजेस किए हैं या नहीं किए, आई डोंट नो, बट प्रीवियस ईयर कुछ ऐसे था। कॉन्वर्सेशन में यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चंस थे, रीडिंग में 10 क्वेश्चंस, रिपीटिंग में 12 क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स में 8 क्वेश्चन, एंड एरर्स में 3 क्वेश्चन, एंड टॉपिक्स में 1 क्वेश्चन। तो ये सारे सेक्शंस थे, टोटल 7 सेक्शन का यहाँ पर एग्जाम था, और ये यहाँ पर टोटल 7 सेक्शंस पूछे गए थे। स्टार्टिंग विथ लिसनिंग डिडक्शन। अब लिसनिंग डिडक्शन क्या होता है? बेसिकली इसमें आपको एक सिचुएशन या किसी चीज के बारे में आपको सुनाया जाएगा। अब उस चीज को सुन के आपको या तो कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है या आपको उस पर कुछ आंसर अपना देना होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको यहाँ पर किसी कोर्ट केस के बारे में बताया गया। अब कोर्ट केस के बारे में आपको कुछ 4 स्टेटमेंट सुनाए गए, और 4 स्टेटमेंट सुनाने के बाद ये पूछा गया कि जो आपने अभी जो जो भी सुना है उससे आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हो। जो भी विक्टिम है उसको
क्या चीज मिलने वाली है, क्या विक्टिम को यहाँ पर जस्टिस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो 4 स्टेटमेंट्स आपको सुनाए जाएंगे। तो ये होता है कंक्लूजन ड्रॉ करना, या फिर आपको कोई सिचुएशन के बारे में सुनाया गया, अब उस सिचुएशन के को सुनने के बाद आपको यहाँ पर कंक्लूजन ड्रॉ करना हुआ। फॉर एग्जाम्पल कि आप यहाँ पर अमेजोन से आपने कोई प्रोडक्ट मंगाया। अब अमेजोन से प्रोडक्ट मंगाने के बाद अगर आपका डिफेक्टिव वो प्रोडक्ट निकला और आपने यहाँ पर सेलर सपोर्ट को यहाँ पर कांटेक्ट किया है। अब सेलर सपोर्ट से आपकी कांटेक्ट हुआ, जिस पे यहाँ पर आपकी रिफंड पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन हुआ। तो लास्ट में वो लोग पूछेंगे कि आखिर रिफंड जो पॉलिसी थी वो क्या थी। तो आपको पूरी सिचुएशन के बारे में बताया गया, तो उसके बेस पर आप यहाँ पर उसको जवाब दोगे। सो लिसनिंग डिडक्शन मतलब यही होता है कि कोई आपको सिचुएशन सुनाई जा रही है और आप उस पर अपनी समरी या विचार दोगे। कन्वर्सेशन क्या है? कन्वर्सेशन स्ट्रेट दो लोगों के बीच ही कन्वर्सेशन होती है। तो जैसा कि सपोज आपको दो कन्वर्सेशन सुनाई गई, रमेश और राम के बीच में। अब सपोज इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है, सपोज एक टॉपिक को लेकर कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर और वर्क फ्रॉम ऑफिस कल्चर, ठीक है, इसके बीच में। अब बेस्ड ऑन द कन्वर्सेशन आपसे सपोज कोई क्वेश्चंस पूछे गए, तो आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। तो आप ध्यान से सुनोगे जो भी कॉन्वर्सेशन आपको सुनाई जा रही है, और उस कॉन्वर्सेशन को लेकर जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप उसको ध्यान से सुनोगे और यहाँ पर आप उसके बेस पर यहाँ पर आंसर देने की कोशिश करोगे। तो ये यहाँ पर होने वाला है कन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चंस में, ठीक है। देन आता है आपका रीडिंग एंड रिपीटिंग। तो रीडिंग में आपको कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो अभी हमने डिस्कस किए थे, लगभग 10 क्वेश्चन है। रिपीटिंग में 12 क्वेश्चन होते हैं। रीडिंग तो सिंपल है 10 क्वेश्चंस की, जिसमें आपको सिंपली कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे और उनको आपको रीड करना होगा, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख जाएंगे। सो बेसिकली आपको सिंपली उनको बस रीड करना है, लाउड रीड करना है और प्रॉपर आपको प्रोनाउंस करना है। रिपीटिंग में 12 क्वेश्चंस है। 12 क्वेश्चंस जनरली इस टाइप से ये डिवाइड होते हैं, यूएस, यूके और पोलैंड। अब यहां पर आपको ये 3 कंट्रीज के एक्सेंट सुनाए जाएंगे, 4 सेंटेंस यूएस के एक्सेंट में, 4 यूके में और 4 पोलैंड में। एंड ये डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट्स की साउंड आपको सुनाई देने वाली है, और जो सेम चीज आप सुनोगे आपको वही चीज रिपीट करनी है। और ये एक ऐसा राउंड है जिसके लिए मैं आपको बस एक ही चीज बोलूंगा कि यहाँ पर मेक श्योर कि आप जो भी चीज सुन रहे हो ध्यान से सुनो, काफी अच्छे से सुनना कि क्या बोला जा रहा है। बिकॉज इसमें क्या है, कभी कभार डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट्स होते हैं और आप ऑडियो को केवल एक ही बार यहाँ पर प्ले कर पाओगे। एंड अगर आप को नहीं समझ में आया कि क्या बोला गया है, तो आपका एक जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है कि जो भी आपको बोला जा रहा है वो क्या बोला जा रहा है। देन आता है फिल इन द ब्लैंक्स एंड एरर। तो यहाँ पर आपको लगभग फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलते हैं जो कि ग्रामेटिकल फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, एंड ये ग्रामर बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, जिसमें आपके नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, वर्ब, इन सभी चीजों को मिलाकर आपसे यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, टेंस वगैरह से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जा रहे होंगे, जिसमें आपको सेंटेंस कंप्लीट करना होगा बाय यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स। देन आता है एरर। एरर डिटेक्शन में आपके क्या होगा कि यहाँ पर अलग अलग टाइप के आपके सेंटेंसेस होंगे, और उस अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस में आपके हो सकता है कुछ एरर्स वगैरह हो। तो उन एरर्स वगैरह को आप लोगों को यहाँ पर डिटेक्ट करना होगा, और आपको बताना होगा कि क्या एरर्स है, और आपको सेंटेंस को करेक्ट करना होगा। सो बेसिकली जैसे सपोज ये लिखा है कि अ, जैसे सपोज आई एम गोइंग टू हाउस, ऐसा कुछ है, ठीक है, जो अपना करंट करंट सेंटेंस होगा, ठीक है। अब इसमें लिखा है आई एम गो टू हाउस, तो आपको पता है ना एरर कहां पर है, गो में है, बिकॉज आईएनजी भी इसके साथ आएगा, करेक्ट। सो इस टाइप के एरर्स मतलब और डिफिकल्ट भी होंगे थोड़े से, तो मतलब आपको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको सेंटेंस को, एरर्स को करेक्ट करना होगा, फिल इन द ब्लैंक्स। या ना स्पीक ऑन टॉपिक, जिसमें आपको कुछ टॉपिक दिया जाएगा जिसके बारे में आपको सबसे पहले थिंक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक टॉपिक दिया गया, वुमन एम्पावरमेंट, ओके, या फिर नेचुरल डिजास्टर। इस प्रकार से अगर आपको कोई सपोज टॉपिक दिया गया है, सबसे पहले आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल 60 सेकेंड्स, उस टॉपिक के बारे में सोचने के लिए, और उस टॉपिक को सोचकर फिर आपको 90 सेकेंड उस टॉपिक के बारे में बोलना होगा। तो ये यहाँ पर होता है स्पीक ऑन टॉपिक। तो इस प्रकार का ये आपका कुछ रह सकता है जो लास्ट ईयर का पैटर्न था, वो सब डिस्कस एंड करते हैं। आई होप ये तो जो चीज आपको सबसे क्लियर हुई पहला होगी। सेक्शन है थैंक यू वो सो है मच फॉर इंग्लिश वॉचिंग। कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आपको 12 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एंड 15 मिनट्स का टाइम देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, टोटल 15 मिनट्स हैं। पर पैराग्राफ आपको लगभग 4 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, हो सकता है आपको 3 पैराग्राफ्स देखने को मिल जाए, और 3 पैराग्राफ्स के आपके 4 क्वेश्चंस रहेंगे, लगभग 5 मिनट्स का टाइम पर पैराग्राफ आप बोल सकते हो। इस प्रकार का कुछ पैराग्राफ आपका होता है।
12 क्वेश्चन आएंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ जो हम सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज दिस वन। Technology has changed the way people live, work, and communicate. With the rise of the internet and smartphones, the information is now available at our fingertips. While this has made life more convenient, it has also created challenges such as reduced attention spans and over dependence on digital tools. Employers today look for the individuals who can balance the technical skills with critical thinking and creativity. Therefore, students are encouraged to not only master technology but also improve problem solving and communication skills. Okay, so the first question is, according to the passage, what is one benefit of technology? Okay, so four options are: it reduces communication. No, this is not true. It makes information easily accessible. Yes, that's correct. It removes the need of for problem solving. No. It increase attention in, spans. Definitely not. So the answer would be it makes information easily accessible. This would be the answer. What is one challenge created by technology as mentioned in the passage? Lack of information? No. Decreased productivity? Definitely no. Reduce attention spans? Correct. Because this we have read in the paragraph that they have mentioned it. Reduce the attention spans. Improved creativity? No. Okay. Next question. What do employers look for in individuals today? Only technical skills, only creativity, technical skills along with critical thinking and creativity. That's right. That's what we have read in the paragraph. Ability to use smartphones. So these three are not the correct option. What advice is given to the student in the passage? Okay. So focus only on the technology. No. Avoid digital tools. No. Improve both problem solving and communication skills. Yes. This was the correct message. Depend fully on internet? No. So third option is correct. Which of the following best summarize the passage? Technology has only one advantage? No. Employers prefer people who avoid technology? No. Technology is important, but soft skills are equally necessary? Definitely yes. This is the main motive of the passage. Smartphones are harmful for students? No. So the right option will be C. अभी आप लोगों ने देखा 5 क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे हैं पैसेज के, एंड इसी प्रकार के आपको टोटल 12 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा अब, और इसी प्रकार से हम सारे सेक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये फर्स्ट सेक्शन था विच इज इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें 12 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। बाकी आपको एक चीज बताता हूँ, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन की अगर आपको पैसेज वगैरह भी प्रैक्टिस करने तो ये भी हमारे टेस्ट सीरीज में अवेलेबल है। सेक्शंस आपको मैं दिखाते जाऊंगा लगातार, जो कि एलटीआई माइंट्री में पूछे जा रहे हैं। अगर आप देखोगे तो दिस इज द रीडिंग पैराग्राफ सेक्शन, जिसमें आपको 6 पैराग्राफ्स मिल जाएंगे फॉर प्रैक्टिस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 2 पे, जो कि है लॉजिकल एबिलिटी। इसमें आपसे 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15 मिनट्स में। अभी हम सैंपल 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टोटल आपको 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 15 मिनट्स का टाइम रहता है। जो ओवरऑल लेवल रहेगा वो इजी होता है, इसमें आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते, इजी लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लाइक दिस वन। फाइंड द नेक्स्ट। अच्छा, लास्ट ईयर सीरीज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे, इसलिए मैंने सीरीज का क्वेश्चन यहाँ पे डाला हुआ है। लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे एलटीआई मेंटेनेंस सीरीज से। So find the next number in the series, which is 2, 6, 12, 20 and 30. Let's talk about the pattern here. So if we find here the similar pattern, so by looking it at, if you guys can see, there is no consistent number which we are adding or subtracting in it. So we need to figure out the pattern actually in this. By looking at the series and by figuring out, we can actually find. If we will do the subtraction here, so okay, so 6 minus 2 would be the difference of 4. Then 12 minus 6 would be the difference of 6. Then 20 minus 12 will be the difference of 8. Then 30 minus 20 will be the difference of 10. That means we are increasing the difference by 2. So the next number will be 42, because in the 42 it is 42 minus 30 and the difference would be 12. So I think the answer should be 42. Okay, so this kind of question would be there. Okay, and around 1 minute will be given to you to solve the question. Next, four friends. Okay, four friends A, B, C, D are sitting in a row. A is the left of B. Okay, A is the left. Okay, so this is right, this is left. Okay, A is the left of B. C is the right to D. Okay, so D here, and it is right, so here. D is to the left of B. Okay, so D is to the left of B, and A is also to the left of B. Okay, so uh, it should be like this, like A if we can place here. Okay, and after placing here A here. Okay, and the second condition, A, B should be the right of it. Okay, so B could be somewhere here. Okay, and suppose they are saying C is the right of D. C is the right of D. Okay, so C could be
either here or either here. Okay, so there could be two positions for C, either here, because here also it will be the right of B, right of D, and here also it would be right of B, and both will be satisfying the basically all the conditions. So A, D, C, B. I think this would be satisfying all the condition, and A, D, B, C. This will be satisfying all the condition. Let's check. A is to left of B. So A is to left of B. Okay, this is correct. Okay. C is the right of D. So C is the right of D. This is also correct. And D is the left of B. So D is the left of B. Okay. So all conditions are satisfying in this one. Now let's check in the second one. A is the left of B. A is the left of B. Okay. And C is to the right of D. C is the right of D. D is the left of B. D is the left of B. So all conditions are satisfying for both the patterns ADCB and ADBC. Let's check out the options. So who is sitting in the middle of two position, A and B? Okay, this could be not our answer in the both. B and C. B and C is not in the middle for both. A and D. A and D is still not the answer for both. D and B. So D and B is the answer for this one, right? So D and B is in the middle in this one formulation. So that's why the answer would be D and B. Okay, I hope you guys got it. Let's okay, so these are the two sample question only which I have solved. Okay, but just want to tell you guys, this is only the sample test. I will be solving each and individual section in the different videos. I am just thinking that I should more focus on computer programming and computer science, because all the other sections are from quant. Okay, so quant, all very different resources are available for quant. Okay, I'm just thinking if I can focus on this, okay, which is computer programming and computer science. Okay, so currently I'm just solving some basic sample questions. Okay, just to give you a idea that what kind of questions you can expect. But in the future, in the more preparation videos, I will be solving some more questions, and majorly related to the technical questions. Okay, then quantitative ability, 12 questions would be there in 15 minutes. Okay, so 12 question would be there in 15 minutes. So this would be in quantitative ability. So A can complete a task in 12 days and B can complete the same task in 16 days. If both work together, in how many days will they finish the task? Okay, so A can complete the task in 12 days. That means he's doing the task 1 by 12 per day. And B can complete the same task in 16 days. So 1 by 16 he's doing per day. We can add them if they are both doing the task. So it would be 48, and this would be 4 plus 3, which is 7 by 48. 7 by 48 we can do in one day. Okay, so one day task would be 7 by 48. Now we need to find out if we combine both together, so how can the task can be done in how many days, right? So 7 by 48 we are doing in one day, and the whole full task would be 1. So to get 1, we actually need to multiply the same thing by oppositing it. So we can directly, to get 1, we can directly say to basically we need to actually do 48 by 7, or this is the basic formula also. Okay, to get 1, actually the 48 by 7 task we can say would be the total number of days in which they can complete the whole task, because they are doing 7 by 48 daily. Okay, so in these many days, if they will do this task, then definitely they can complete the task, because if they are doing 7 by 48 daily, okay, and this many days required, which is 48 by 7, then the answer would be 1. Correct? That's why if we will find 48 by 7, that then we will be finding our answer. So 48 by 7 will be 6.86 days, which will be around 7 days. So 7 days would be our answer. Okay, so this would be our answer. So these are the sample questions which I am solving. Okay, and I will be solving an individual question definitely in the future. And if you are liking the video, make sure to like this video. Okay, and these all things are available here in the mock test. So if you will look in the quantitative, actually quantitative, we have provided
14 mock tests consisting of 240 questions like this. In reasoning also 240 questions, and in verbal also 240 questions. Combinedly you will be getting 720 questions for practice. So 720 question is a huge number definitely for practice. Okay, so next question we have, that is on simple interest. So the simple interest on uh, 5000 at 12% per annum for 3 years. So that's a simple formula based question, which will be 5000 multiplied by 12 multiplied by 3 divided by 100, correct? So this would be 50 multiplied by 12 multiplied by 3, that is 50 multiplied by 36. Okay, and 50 multiplied by 36 we will be finding out. So it's actually something like this. Okay, so 1800 is the one's answer. Okay, so 1800 would be our answer. Okay, so this would be the simple interest on 5000 rupees at 12% for 3 year. Okay, next let's talk about computer programming. This is actually not section 3, I'll just tell you. Okay, so English comprehension we already solved, logical ability we solved, quantitative ability solved. These kind of questions you will be getting around 12 questions. I'm just solving some few questions. Then there is basic analytical ability. So basic analytical ability basically combines the quantitative ability and logical ability. Currently I'm not solving it because I will be solving some questions in a separate video for analytical ability. Okay, then next section is computer programming, which will be solving, and let's talk about it. Okay, so computer programming is let's solve some question. So yeah, computer programming. So there will be total 25 questions in 35 minutes. Okay, what kind of questions you will be getting? Let's solve them. What will be the output of the following code? So int a equals to 5, that is C. Okay, so language is C. Printf a plus plus, then plus a. Okay, so they are saying a post increment, then plus symbol, then pre increment of a. Okay, so this kind of behavior we cannot expect in a programming, so that would be a undefined behavior, because using with both post increment and pre increment the same expression leads to the undefined behavior in C. Okay, so the answer would be undefined behavior. There would be no 11, 12 or 10. Next question, which data structure is used in recursion? Very easy question. Stack. Definitely when we call recursion, or when we are using recursion function, definitely we store the values in stack. Okay, the previous call value, suppose we are calling the recursion, suppose for Fibonacci series. Okay, so suppose something like this. So this is Fibonacci of 5. Okay, then suppose we are doing recursion here, so whatever the value will be here, that would be stored, and then we will call Fibonacci of 4. Okay, and like this, like this, like this, and in the top, suppose we get 1 or 0, whatever we are getting, then we start returning it in the previous column of the stack. Okay, so that's why we use a stack here. Simple state theory question. What is the time complexity of searching an element in a balanced binary search tree? Okay, so time complexity for searching an element in balanced binary search tree, order of log n. Theory question again. Okay, because it is balanced binary search tree, definitely the time complexity will be order of log n. Okay, and if you guys don't know what is binary search trees, so basically binary search tree will be containing the small value at the left side and the higher value at the right side. So this kind of tree we call binary search tree. Okay, what is the following code print? Okay, so let's talk about it. What they are saying is okay, what following code prints? Okay, so this is function. Okay, function they are saying. Okay, so this is some interesting stuff which I am seeing. X equals to, okay, defined array, then x dot append 1 and return x. Okay, then print function 1 and print. Okay, let's execute this. So when we will be calling function, okay, so it will start from this. Okay, and the list will be declared like x equals to this. Then we will append 1 into the list. Okay, so the answer will be list of 1. So when we will print this, the answer will be printed like this. Okay, then again function we are calling. Now this is the main concept here. Okay, so because we are using here like this in the function argument, we are using like this. Okay, it only declares one time.
it cannot declare every time when we are calling the function, and already we have appended one here. Okay, and this statement will be executing only once. Okay, this is the main concept of the Python. Then when we are again calling the function, it will append it after it. Okay, so we already have one element here, so the next output would be 1 comma 1. So this would be our final answer, which is 1 and 1 comma 1. This would be our answer. So 1 and 1 comma 1, this would be our answer, option number B. Which sorting algorithm is a basic suited for nearby sorted array? Definitely insertion sort. Insertion sort, if our array is nearly sorted, definitely we will be choosing insertion sort. Now again a new section, which is computer science. So we will be getting 20 questions here in 20 minutes. I'm not solving the whole question, I'm just giving you idea, but I will be creating some dedicated videos with solving all the sections. In this video I am just giving you the overview, like how the paper will look like, what kind of questions would be there in LTI Mentry exam. Okay, so section 5, computer section, 20 question, 20 minutes. Operating system, which of the following is a not characteristics of a operating system? Resource management, definitely OS do that. Process scheduling, OS do that. Memory management, OS. Compilation of code, compiler do that. Okay, so this would be our answer D. Database management, which normal form removes transitive dependency? 3NF. I don't need to look for the answer, definitely it is 3NF. Okay, because if you will read the property, okay, of the all normal forms, either it would be 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, whatever it is. So basically this is the normalization which we use in DBMS, and many times companies ask the questions around keys, normalizations. Okay, so schemas. So this is the basic property of 3NF, that transitive dependency we remove in 3NF. Okay, networking, which protocol is used for sending email? Okay, a very basic question, everyone knows it. Okay, SMTP is the basic protocol which we use for sending emails. Okay, so I think this I understand that 90 to 95% of people know about this. Okay, that SMTP protocol we use for sending email. What is the time complexity of searching in a hash table? Average case. Okay, so in average case it would be order of 1. Okay, because hash table, the main purpose of hash table is reducing the time complexity, and when we are using the hash table, definitely the average case will lead to order of 1. Which of the following is an example of runtime polymorphism? So method overriding, definitely. So when we use method overriding, it actually decides on runtime that which method we want to call. Okay, so which method which we are basically calling, that would be decided on the runtime. Okay, so this would be our computer science. Now only two sections we have not discussed in this video. One is spoken English, because I will be creating one separate video. I don't want to mess up things in this. And one is basic analytical ability, because different question or kind of questions would be there. Apart from it, each and every section, some sample questions we have solved, just to give you an idea like what kind of questions you can expect in your exam. So this kind of questions you will be getting. For practice, you can use the Arjun series mock test, link will be in the description. I will be coming up with more preparation videos. Thank you so much for watching this video. खोलना और वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं, ठीक है? ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले मैं जो बोल रहा हूं एक एक चीज, एंड मैक्सिमम लाइक हो जाने चाहिए, मैक्सिमम लाइक हो जाने चाहिए इस वीडियो पर, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो मैक्सिमम लाइक्स आई होप आप लोगों ने कर दिए होंगे अभी तक। देखो, सबसे पहले आपको पता है कि आपके जो क्वांट के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज देखो, पहली बात तो ये आपके एक लेवल होता है इनका, इजी मीडियम कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और बाकी इनको डिस्कस करके ज्यादा कुछ फायदा भी नहीं है, क्योंकि अगर आप सारे टॉपिक्स को कंबाइन कर लोगे, लाइक डायरेक्शंस होता है आपका, क्वांट में परसेंटेज होता है, और जितने भी टॉपिक्स होते हैं सबको मिलाकर आपका ये इसका पेपर बनता है इजी मीडियम लेवल का, और इसके लिए कुछ खास बताने के लिए इसमें है नहीं, ठीक है? नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं एप्टीट्यूड के, वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ क्वेश्चन आपको मीडियम लेवल के आ सकते हैं, ज्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे इजी होंगे, और लगभग 1 मिनट से ज्यादा का टाइम होगा, तो आप कर पाओगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। देखो, अगर आप बिल्कुल लास्ट मूवमेंट पे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो लास्ट मूवमेंट पे प्रैक्टिस करने से कुछ भी नहीं होता, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं। आपको यहाँ पर अच्छे से प्रिपरेशन अपनी करनी पड़ती है पहले से, लास्ट मूवमेंट से तो कुछ भी नहीं होगा, पहले से अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए।
बट अब मेन आता है टेक्निकल पे, और जो मैं आपको यहाँ पर लिख कर दे रहा हूँ, कल आप एग्जाम देके आना हो, बताना कि वो चीज आई थी या नहीं आई थी। और मैं खुद कह रहा हूँ, अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि जो आपने बोला था वो नहीं आया। मैं इतने आपको भरोसे से कह सकता हूँ। देखो टेक्निकल में कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगी, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। दो तीन टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के आपको कुछ थ्योरी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसमें कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपके ग्राफ से बिल्कुल बेसिक थ्योरी टाइप के क्वेश्चंस हो, ठीक है, स्टैक क्यू हो गया, ठीक है। और आपके जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक लिंक लिस्ट है, सो इन सब के कुछ थ्योरी टाइप के क्वेश्चंस, ज्यादा उसमें वो कुछ नहीं होगा, मतलब कोड वगैरह, बट थ्योरी टाइप के, थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को इसमें मिल सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल डायरेक्ट थ्योरी, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बट थ्योरी ही टाइप का होगा, ऐसा कुछ कोड का कुछ नहीं होगा। तो पहले तो ये पॉइंट हो गया, ये आपको कल देखने को मिलेंगे, आप मुझसे गारंटी लिखवा लो। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो होंगे स्यूडो कोड। अब ये जो सूडो कोड्स हैं ये आपको एक अच्छी मात्रा में देखने को मिलने वाले हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एटलीस्ट आपको लगभग 7 to 10 क्वेश्चंस रिलेटेड टू सूडो कोड्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको लगभग 1 to 1.5 मिनट का टाइम होगा और इसको आप कर पाओगे, ठीक है, कर पाओगे। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे, काफी सूडो कोड्स जो कल आपके क्वेश्चंस पे आएंगे इवन 2 to 3 लाइनर्स होंगे, बट थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं। तो टेक्निकल में ये बात ध्यान रखना कि ये आपको जो सूडो कोड्स देखने को मिलने वाले हैं वो भी आपको मिलेंगे। और कैसे मिलेंगे, मैं आपको जस्ट सेम एग्जैक्ट लेवल जो कल आपका पूछा जाएगा वही लेवल इसमें अभी सॉल्व कराऊंगा, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है। और फिर आ जाते हैं कि जैसे बाकी क्वेश्चंस आपके कुछ हो गए, तो सूडो कोड्स हो गए, डीएसए हो गए, ये तो आपके इसमें कोडिंग प्रोग्रामिंग साइड के क्वेश्चंस हो गए जो आपसे पूछे जाने वाले हैं। प्लस कुछ आपको मिलेंगे इसमें एल्गोरिथम बेस्ड क्वेश्चन, एल्गोरिथम बेस्ड क्वेश्चन। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। तो लास्ट ईयर कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे कि सपोज एक मैट्रिक्स है जो कि लगभग 3x4 का है। अब अगर इसका डायगोनल सम करना है, डायगोनल का सम करना है, ठीक है, तो अगर डायगोनल सम इसका करना है और अगर हम इसकी ऐसी एल्गोरिथम लिखें जो कि ऑप्टिमाइज्ड हो, तो टोटल कितने टाइम लूप्स चलेंगे, ऐसा कुछ। या फिर अगर हम एक काउंटर वेरिएबल लेते हैं जो कि आउटर लूप के बाहर है, पूरा का पूरा डायगोनल सम करने के बाद अगर हम हर बार काउंटर को +1 से इंक्रीमेंट करें तो काउंटर की वैल्यू लास्ट में क्या होगी, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस आपको बताता हूं, जैसे रिकर्जन के कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है, जिसमें आपको थ्योरी की 3 से 4 लाइंस में क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा, कोड नहीं दिया जाएगा। 3 से 4 लाइन में आपको यह बताया जाएगा कि प्रोग्राम में एक्चुअली है क्या, और फिर आपको एक सिचुएशन से आंसर पूछी जाएगी, जैसे मैंने आपको इसमें बताया, ठीक है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको कल अच्छी मात्रा में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो एक चीज आपको श्योरिटी लेनी पड़ेगी कि एक तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की एटलीस्ट बेसिक नॉलेज आपको हो सारे सब्जेक्ट्स की, प्लस अगर आपको इसमें अच्छा परफॉर्म करना है तो एटलीस्ट 100 to 150 क्वेश्चंस सभी टॉपिक के मिला के, जिसमें आपका एरे, स्ट्रिंग्स, मैट्रिक्स, ये सब है, सब कंबाइन करके आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, अदरवाइज आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि हार्ड है, बट प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये बात मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। अभी क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, बट टेंशन मत लेना। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने को मिलेंगे। बाकी जब बात आती है सीएस फंडामेंटल्स की, तो 2 टॉपिक्स के आप ये मान के चलो कि आपके 4 से 5 मार्क्स में फिक्स कर दूंगा, जो आपको कल देखने को मिलने वाले हैं सीएस फंडामेंटल में। गारंटी लिख के दे रहा हूं कि वो चीजें आएंगी। पहले मैं बता रहा हूं वो क्या क्या चीजें आएंगी। एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की मैचिंग आएंगी, मैच मैच द कॉलम्स, मैच द कॉलम्स, ठीक है, जिसमें यहां पर कुछ नाम लिखे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल पेजिंग या सेगमेंटेशन, और उनको आपको उनकी डेफिनेशन से मैच करना होगा। और ये कैसे क्वेश्चंस होते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा अभी आगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले, गारंटी लिखवा लो आप। सीपीयू शेड्यूलिंग की एल्गोरिथम के 1 से 2 क्वेश्चंस आपको कल देखने को मिलेंगे, इसकी भी गारंटी लिखवा लो। बेसिक सीपीयू शेड्यूलिंग की जो एल्गोरिथम है, लाइक एफसीएफएस होती है या शॉर्टेस्ट टाइम वाली एल्गोरिथम होती है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको 1 से 2 क्वेश्चन जिसमें चार्ट दिया होगा, को
कि किसी प्रोसेस का वेटिंग टाइम इतना है, प्रोसेस का आईडी ये है, तो वेटिंग टाइम कितना होगा, इस प्रकार से। ठीक है, अभी उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो ये आपके मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम के 4 से 5 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिसमें एफसी मतलब ये सीपीयू शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम्स और ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनकी डेफिनेशन आप मान के चलो गारंटेड आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और जैसा मैंने बताया तो ये आपको देखने को मिलेगा डेटाबेसेस। डेटाबेसेस से आपको नॉर्मलाइजेशन के ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा आता है एटलीस्ट, और ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 1 से 3 क्वेश्चन के बीच में आपको नॉर्मलाइजेशन के बीच के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये भी आप लिखवा के ले लो। नॉर्मलाइजेशन ये मैं आपके पहले ही मार्क्स फिक्स कर रहा हूं कि ये सब आपको कल देखने को मिलेगा, पेपर देके आना और बताना कि ये नहीं आया। ठीक है, गारंटी से आएगा ये सब। ठीक है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। प्लस आपके डीबीएमएस के जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम का मैंने बताया, वैसे ही आपको डीबीएमएस के भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को यहां पर मिलने वाले हैं। तो ये बात भी याद रखना कि डीबीएमएस के भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके भी रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसकी भी डेफिनेशन मैच द फॉलोइंग है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आएंगे और सेम तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके नेटवर्किंग। तो ये जो 3 सब्जेक्ट्स है ना, ये तो बिल्कुल ऐसा मान लो इनके जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बस वो आप एक बार अच्छे से पढ़ के चले जाओ। ऊपर के 2 मतलब जो केवल ऊपर ऊपर से, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है और आपका काम हो जाएगा। ये कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल से आपको देखने को मिलेगा। और जो एल्गोरिथम का सेक्शन है वो आई होप मैंने आपको क्लियर किया है। एल्गोरिथम के सेक्शन में आपको 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक तो आपके डीएसए बेस्ड होगा जो मैंने आपको समझाया, जो कि थ्योरी होंगे और थ्योरी में आपसे कुछ कैलकुलेशन पूछी जाएगी। एक होगा स्यूडो कोड के क्वेश्चंस, और एक टाइप होगा जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया था, एक सूडो कोड हो गया, थ्योरी हो गया, एल्गोरिथम बेस्ड हो गया, और एक हो गया प्रोग्राम बेस्ड, जिसमें आपको कुछ प्रोग्राम वगैरह दिया है, या तो आपको उसमें मिसिंग स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है, या फिर उसका आपको आउटपुट बताना है, या उसी प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे ये हो। अब मैं बिल्कुल एक्चुअल क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, एक एक एक्चुअल क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आया है। प्रूफ के लिए मैंने आपको दिखा दिए कुछ स्क्रीनशॉट्स। ठीक है, तो आप देख लो। और जैसा मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन बताया था ना, तो ऐसा आता है जैसा आप देख पा रहे हो, यहाँ पे 2 ग्रुप्स में डिवाइड है, ग्रुप ए ग्रुप बी। अब आपको जैसे पेजिंग को उसकी डेफिनेशन से मैच करना है, एंड जितने भी कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं, सेगमेंटेशन एंड एसोसिएटिव मेमोरी, रेसिस्टेंसी, तो ये सबको आपको उनकी डेफिनेशन के साथ क्या करना है, मैच करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन ओएस में आते हैं। बाकी जो मैं आपको थ्योरी क्वेश्चन बता रहा था वो ऐसे आते हैं, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ब्रेड फर्स्ट सर्च। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो जनरल थ्योरी के होते हैं। हाउ कैन टू कॉल एन ओवरलोडेड फंक्शन टू एम्बिग्यूअस। ठीक है, मतलब जो भी आपकी कॉल है ओवरलोडेड फंक्शन को कैसे एम्बिगियस हो सकती है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, ध्यान से समझना। पहला है, कंसीडर 3 प्रोसेसेस विद द फॉलोइंग बस टाइम। हमें बस टाइम दिया है 3 प्रोसेस का, जिसका P1 है 5, P2 है 8 एंड P3 है 12। एंड ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट क्वेश्चन समझा रहा हूं आपको। ठीक है, if FCFS first come first serve scheduling is used to order P1 P2 P3, what is the average waiting time? देखो ये कह रहा है कि भैया प्रोसेस है, प्रोसेस 1 5 मिली सेकेंड है, प्रोसेस 2 8 मिली सेकेंड है और प्रोसेस 3 12 मिली सेकेंड है। एंड बस टाइम ये दिया हुआ है और ये बोल रहा है अगर P1 P2 P3 ऐसे जाती है तो एवरेज वेटिंग टाइम कितना होगा। तो देखो जो सबसे पहले P1 है वो तो 0 सेकंड पे ही एग्जीक्यूट हो जाएगी सबसे पहली, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। लेकिन जो P2 है उसको कितना सेकंड वेट करना पड़ेगा, जब तक जो P1 है वो कंप्लीट नहीं हो जाती, मतलब 5 सेकंड का वेट हो गया। प्लस फिर जब ये चलेगी तो कितने सेकंड का वेट यहां पर होने वाला है, अगर आप देखोगे P3 के लिए, तो P3 को अगर आप देखोगे तो P3 के लिए यहां पर जो वेटिंग टाइम होगा वो होगा 5 सेकंड। तो इसके लिए हो गया सेकंड के लिए, एंड P3 के लिए कितना हो गया, 13 सेकंड्स। करेक्ट, 13 सेकंड्स, क्योंकि सबसे पहले 5 सेकंड ये चलेगी तो इसका भी वेट करेगी, 8 सेकंड्स ये चलेगी तो इसका भी वेट करेगी। तो जो फर्स्ट प्रोसेस थी, फर्स्ट प्रोसेस, उसको चलाने के लिए कितना वेट टाइम लगा, 0 सेकंड, क्योंकि वो तो स्टार्ट ही हो गई। सेकंड प्रोसेस को चलने के लिए कितना वेट टाइम लगा, 5 मिली सेकंड, और थर्ड प्रोसेस को चलाने के लिए हमारा टाइम लगा 5 प्लस 8 विच इज 13। तो एवरेज कितना वेटिंग टाइम हुआ, 0 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 13 विच इज 18। एंड इसका जो यहां पर ये ऑप्शंस हैं ये गलत हैं, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है मैंने चैट जीपीटी पे डाला था और ये चैट जीपीटी ने गलत आंसर दिया इसका। सो ये होगा 18 डिवाइड बाय 3 विच इज 6। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 6
मिली सेकेंड। तो इसका जो एवरेज वेटिंग टाइम होने वाला है वो होने वाला है 6 मिली सेकेंड। ठीक है, सो 6 ms इसका यहाँ पर आंसर होगा। एंड ये हमारा फाइनल आंसर इसमें होने वाला है। ये बिल्कुल एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है, बट जो ऑप्शंस थे वो गलत है। ये जो क्वेश्चंस मैंने ये क्वेश्चन जो मैंने प्रोवाइड कराया था, तो इसका 6 मिली सेकेंड टाइम होने वाला है। तो ये हमारा फाइनल आंसर इसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। गिवन 4 प्रोसेसेस with burst times P1 equals to 6 ms, P2 2 ms and P3 8 ms, P4 4 ms. Shortest job first non-preemptive scheduling is used. What will be the execution order? तो देखो, अगर शॉर्टेस्ट टाइम के हिसाब से अगर आप इसको शेड्यूल कर रहे हो तो सबसे पहले तो P2 ही एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि 2 ms है। पहले आ गया P2, फिर P4, फिर P1, फिर P3। सो P2 P4 P1 P3, दिस वुड बी अवर ऑप्शन विच इज आंसर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंसीडर द सूडो कोड फॉर अ स्टैक ऑपरेशन। अब ये जो सूडो कोड का क्वेश्चन है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है ना, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर। एंड इसमें एक मिसिंग स्टेटमेंट पूछा गया था कि इस जगह पर क्या आएगा। ठीक है, मिसिंग स्टेटमेंट पूछा गया था, थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया है। तो ये सेम बिल्कुल एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा गया था। अब इससे आप लेवल जज करो कि क्या लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बिल्कुल यही सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था। फंक्शन है पॉप स्टैक इफ टॉप ऑफ स्टैक इक्वल्स टू -1, और इसी लाइन को कंप्लीट करना था। उसमें ये लिखा था इफ एक्स प्रिंट अंडर फ्लो। तो ये जो एक्स है, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी एक्स की वैल्यू होगी इफ टॉप ऑफ स्टैक्स इक्वल्स टू -1। तो ये स्टेटमेंट आपको चूज करनी थी, तो अंडर फ्लो आएगा। एल्स एलिमेंट जो है वो आप देख सकते हो, बाकी का जो स्टैक का फंक्शन है वो यहां पर मेंशन किया गया है। ठीक है, कि आप जो एलिमेंट है उसको पॉप करा रहे हो, जो ऊपर का आपका एलिमेंट है उसको आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, एंड नीचे लिखा है स्टैक इक्वल्स टू एम्प्टी एंड पॉप स्टैक। तो इसका मतलब ये कि जो स्टैक है वो खाली है और उसको हम पॉप करा रहे हैं। तो ये इस वाले स्टेटमेंट में जाएगा जिसमें लिखा है इफ टॉप ऑफ स्टैक इज -1, बिकॉज -1 ही होगा। देन प्रिंट इक्वल्स टू अंडर फ्लो। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? अंडर फ्लो। सो अंडर फ्लो होगा जो इसका आउटपुट आने वाला है। दिस वॉज द एग्जैक्ट क्वेश्चन जो कि यहां पर पूछा गया था। बस उसमें यह था कि ये जो मिसिंग स्टेटमेंट है इसको आपको कंप्लीट करना था, जिसमें लिखा है इफ द टॉप ऑफ स्टैक इक्वल्स टू -1, देन हमें प्रिंट कराना है अंडर फ्लो। सो दिस वॉज द एग्जैक्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है जिसका मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। व्हाट विल बी रिटर्न इफ a, b is calls in a following function। एग्जैक्ट सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम a, b को कॉल करते हैं इस फंक्शन में, तो क्या हमें आंसर देखने को मिलने वाला है? तो ये है a, b। तो इसमें क्या पास हो रहा है? इफ a is greater than b। तो एग्जांपल लेते हैं, सपोज a की वैल्यू है 3 एंड b की वैल्यू है 4। तो इस कंडीशन में क्या आंसर आएगा? इफ a is greater than b नहीं चलेगा। इफ a is less than b, then return g of b minus a, मतलब g of b minus a is 1। सो 1 यहां पर जाएगा। तो क्या यहां पर रिटर्न आने वाला है? इफ इट इज ग्रेटर देन 0 देन रिटर्न 1। तो 1 आंसर आएगा अगर b a से बड़ा है। तो इसको उल्टा कर लेते हैं, इसको 4,3 कर लेते हैं। तो ये वाली कंडीशन में जाएगा इफ a इज ग्रेटर देन b, रिटर्न g ऑफ a माइनस b। तो यहां पर भी 1 रिटर्न होगा, एंड अगर 1 रिटर्न होगा तो यहां पर भी रिटर्न हो जाएगा 1। मतलब अगर a इज ग्रेटर देन b तो भी जो हमारा आंसर है वो 1 आएगा, और अगर b इज ग्रेटर देन a तो भी हमारा आंसर 1 आएगा। बट अगर इफ a इज इक्वल्स टू b तो हमारा आंसर आएगा 0। सो ये हमें ऑप्शन चूज करना पड़ेगा कि अगर a इक्वल्स टू b देन आंसर आएगा 0, अदरवाइज सारी कंडीशन में आंसर आएगा 1। सो जैसा कि आप देख सकते हो, इफ a इज इक्वल्स टू b देन 0, इफ a इज ग्रेटर देन b देन 1, एंड इफ a इज लेस देन b देन 1। दिस वुड बी अवर आंसर। नेक्स्ट, तो मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट डाल रखा है, एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का LTM एंट्री से। अ डेटा टाइप इज स्टोर्ड एज 6-bit साइंड इंटीजर। और ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला है? ये जो साइंड और अनसाइंड इंटीजर है, इसके हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन LTM एंट्री पे आते हैं। कल जब आप पेपर दोगे खुद देख लेना, आपको इस टाइप का या डेटा टाइप का कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। आज मैं इस वीडियो में बोल रहा हूं, एंड कल की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप जरूर इसको फॉलो करें। सो अ डेटा टाइप इज स्टोर्ड इन अ 6-bit साइंड इंटीजर विच ऑफ द गिवन ऑप्शन कैन नॉट बी रिप्रेजेंट बाय दिस डेटा टाइप। तो अगर देखो 6-bit साइंड इंटीजर है, तो कौन सा ऑप्शन यहां पर डेटा टाइप, मतलब इसमें सपोज कोई ऑप्शन दिया है लाइक 32, 16, 0 और -16। अब ये पूछ रहा है कि 32, 16, 0 और -16 में से कौन सा ऑप्शन है जो कि रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता थ्रू अ 6-bit साइंड इंटीजर। तो देखो, सबसे पहले हमें इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी? तो देखो 6-bit साइंड इंटीजर है, तो ये होगा -2 to the power 5,
मतलब जो इसकी मिनिमम रेंज है वो होगी -32, एंड जो हाईएस्ट रेंज होगी वो कितनी होगी, -2 टू द पावर n -1 विच इज -2 टू द पावर कितनी हो जाएगी 5 -1 विच इज 32 -1, एंड जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 31। मतलब जो 6 बेस साइंड इंटीजर है उसकी रेंज होगी -32 से लेके 31 के बीच में, और जो ऑप्शंस दिए हैं वो है 32, 16, 0 एंड -16। मतलब 6 बेस साइंड इंटीजर में आप 32 को नहीं यहां पर रिप्रेजेंट कर पाओगे, बिकॉज जो इसकी रेंज है वो है -32 से लेके 31 तक। ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला है 32। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये एग्जैक्ट कोड है, सूडो कोड जो कि पूछा गया था। चूज द करेक्ट ऑप्शन, व्हाट डज द फॉलोइंग फंक्शन डू, फंक्शन ऑपरेशन इंट ए कॉमा इंट बी। ठीक है, तो यहां पर ये कह रहा है फंक्शन में ए कॉमा बी हमारे पास है। इफ ए इज लेस देन बी देन रिटर्न बी कॉमा ए। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज ए कॉमा बी की वैल्यू है 4,3 अगेन। ठीक है, अगर ए इज लेस देन बी, अगर ए इज लेस देन बी ऐसा तो नहीं है, एल्स रिटर्न ए, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। अब सपोज अगर इसका आंसर है 3,4, सपोज ए कॉमा बी की वैल्यू है, इफ ए इज लेस देन बी मतलब 3 इज स्मॉलर देन बी, यस, देन रिटर्न बी कॉमा ए, दैट मींस 4,3 रिटर्न करना है। देन अगेन हमारा आंसर क्या आएगा 4। मतलब ये जो फंक्शन है इसका आंसर आएगा कि जो भी ग्रेटेस्ट वैल्यू है उसको ये फंक्शन रिटर्न करेगा। मतलब जो भी मैक्सिमम वैल्यू है बिटवीन ए कॉमा बी वो इसका आंसर होगा, या फिर मैक्स ऑफ ए कॉमा बी। आप इस लेवल के क्वेश्चंस यहां पर पूछे जा रहे हैं। मैच द ओएस कॉन्सेप्ट्स विद देयर डिस्क्रिप्शन, तो ये आप ये मान के चलो कि इस प्रकार का क्वेश्चन तो आने ही वाला है। इस प्रकार का क्वेश्चन गारंटेड आएगा, आप लिखवा के ले लो मेरे से, कल आप एग्जाम देख के आओगे ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को उसमें मिलेगा। मैच द ओएस कॉन्सेप्ट विद देयर डिस्क्रिप्शन, जिसमें दिया है डेडलॉक, पेजिंग, थ्रेशिंग एंड सेमाफोर। अब हमें इनको इससे मैच करना, तो पहला आ गया इसमें डेडलॉक। तो डेडलॉक को तो हम सब जानते हैं, डेडलॉक का मतलब क्या होता है कि जहां पर प्रोसेस एक दूसरे के लिए वेट कर रही होती है और कोई भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाती, तो वन किससे मैच हो जाएगा, जो वन है वो मैच हो जाएगा यहां पर सी के साथ। ठीक है, पेजिंग, पेजिंग क्या मतलब होता है, अब पेजिंग का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी मेमोरी को छोटे छोटे पेज में डिवाइड करते हो या फिर छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करते हो, तो टू मैच हो जाएगा बी के साथ। अब आगे थ्रेशिंग, थ्रेशिंग का मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, एक्सेसिव पेजिंग रिड्यूस परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी थ्रेशिंग। और सेमाफोर क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन टूल। तो ये जो चार हैं इनको इन चार ऑप्शन से हम मैच करेंगे। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब आप खुद समझ लो कि लेवल क्या है, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। मैच डीबीएमएस कीज विद देयर रोल, प्राइमरी की, सो प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है बताओ, यूनिक की चूजन एज आइडेंटिफायर, करेक्ट। और अगला ऑप्शन है रिफर टू प्राइमरी की टू अनदर टेबल, कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, अरे एक सेकेंड यार, कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स एज आइडेंटिफायर कैन नॉट बी नल एंड मस्ट बी यूनिक। ठीक है, सो देखो, एज अ, अगर आप प्राइमरी की को देखोगे और इसमें दिया है कैंडिडेट की भी दिया है, तो दोनों चीजों को अपन को ध्यान में रख के चलना है। तो जो सबसे इसकी क्लोजेस्ट जो आंसर होगा वो होगा कैन नॉट बी यूनिक एंड मस्ट बी यूनिक। तो ये इसका आंसर होने वाला है, वन का डी होगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यस, वन का जो अगर आप आंसर देखोगे तो वो होने वाला है डी। ठीक है, अब आ गया फॉरेन की। तो फॉरेन की क्या होता है, देखो फॉरेन की का क्या मतलब है कि आपने एक फॉरेन की ली हुई है जिसको आप यूज कर रहे हो दो टेबल्स के बीच में रिलेशन के लिए। ठीक है, और ये किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की के साथ जोड़ती है एक टेबल को, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका आंसर रिफर्स टू प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। तो ये इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, फिर बचा कंपोजिट की एंड कैंडिडेट की। तो कंपोजिट की क्या होगी, कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट एज आइडेंटिफायर, एंड कैंडिडेट की क्या होगी, यूनिक की चूजन एज आइडेंटिफायर। तो ये इसके आंसर्स होने वाले हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, मैच ओएस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। एफसीएफएस सबको पता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होती है। अब जो एफसीएफएस होगी वो क्या होगा, ये एक तो फर्स्ट कम बेसिस होती है और ये होगी नॉन प्रीएम्प्टिव। ओके, नॉन प्रीएम्प्टिव है ये, एंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस होती है। सो इसका आंसर आएगा बी के साथ। अब आ गया राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन क्या होता है, देखो राउंड रॉबिन का मतलब क्या है कि कुछ 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 जो टाइम है वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे वन बाय वन टाइम दिया जाएगा कुछ कुछ। तो राउंड रॉबिन जो फॉर्मेट होता है वो आता है टाइम स्लाइस बेस्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, प्रायोरिटी का क्या मतलब होता है,
अब देखो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग को अगर आप जब भी देखो तो उसमें क्या होता है कि जो भी आपकी प्रोसेस है उसके साथ एक प्रायोरिटी अटैच करी जाएगी कि भाई इसके साथ ये प्रायोरिटी अटैच है, या तो वो हाई प्रायोरिटी होगी या लो प्रायोरिटी होगी, और उस हिसाब से वो जो जॉब है वो शेड्यूल होगी। तो मे कॉज स्टारवेशन बिकॉज ऑफ लो प्रायोरिटी जॉब्स, तो ये इसके साथ होगा एसजेएफ। सो एसजेएफ क्या होता है, ये होता है जॉब की लेंथ क्या है उसके बेसिस पे, ठीक है। सो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट होता है, तो ये होगा आपका बेस्ड ऑन जॉब लेंथ। सो ये इसका होने वाला है। देखो डीबीएमएस का नॉर्मल फॉर्म्स लास्ट 3 साल से प्रीवियस ईयर में पूछा जा रहा है। ये लास्ट 3 साल से गारंटेड, कल का पेपर आप उठा के देखो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन कि भैया जो प्रॉपर्टीज है 1NF 2NF 3NF या BCNF की वो क्या होती है। एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, गारंटी लिख के दे रहा हूं। तो देखो 1NF का क्या मतलब होता है, 1NF तो सब जानते हैं कि इसमें केवल एटॉमिक वैल्यूज होंगी, तो ये 1B से मैच कर जाएगा। 2NF 2NF मैंने कल की वीडियो में भी आपको पढ़ाया था, 2NF जो हमने कल वीडियो डाली थी उसमें भी डिस्कस किया था, नो पार्शियल डिपेंडेंसी, तो इसका आंसर होगा सी। 3NF क्या होगा, तो 3NF का भी हमने कल डिस्कस किया था, नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ये भी कल की वीडियो में डिस्कस किया था। देन आया BCNF, BCNF का मतलब क्या होता है, एवरी डिटरमिनेंट इज अ कैंडिडेट की। तो ये चार इसकी यहां पर मैचिंग होने वाली है, ठीक है। मैच ओएस मेमोरी कॉन्सेप्ट्स विद देयर मीनिंग्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको उनके मीनिंग के साथ हमें मैच करना है। पहला हो गया वर्चुअल मेमोरी। अब जो वर्चुअल मेमोरी है भैया वो क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी का मतलब क्या होगा, फास्ट स्मॉल मेमोरी नियर सीपीयू नहीं, ये तो सबको पता है कैशे होती है, तो इसको तो ऑप्शन देने की जरूरत ही नहीं है, तो इसको तो कैशे से मैच कर देते हैं हम डायरेक्टली, ठीक है। लॉजिकल मेमोरी लार्जर देन फिजिकल, करेक्ट। तो जो फिजिकल मेमोरी है उससे सिमिलर, अगर उससे ज्यादा लार्जर, इवन अगर आप वर्चुअली किसी मेमोरी को क्रिएट कर पा रहे हो, दैट इज वर्चुअल मेमोरी, जो कि फास्ट प्रोसेसिंग के काम आती है। तो बी के साथ अपन यहां पर मैच कर देंगे अपनी वर्चुअल मेमोरी को, ठीक है। फिर क्या है, मूविंग प्रोसेस इन और आउट, मूविंग प्रोसेस इन एंड आउट ऑफ डिस्क, मतलब किस प्रोसेस को आप यहां पर डिस्क में रखना चाहते हो, किसको बाहर करना चाहते हो, ये आता है स्वैपिंग के अंदर। तो ये स्वैपिंग कहां है, ऑप्शन 2 है, ओके। तो स्वैपिंग के साथ जाएगा ये। बचा अनयूज्ड स्पेस ड्यू टू एलोकेशन, तो ये आएगा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब ये आपका इसमें जाने वाला है, क्या बोलते हैं, कहां गया मैं, कंफ्यूज हो गया, कहां पर थे हम, अनयूज्ड स्पेस ड्यू टू एलोकेशन, हाँ, तो ये आपका जाएगा फ्रेगमेंटेशन के साथ, ओके। नाउ स्टार्ट करते हैं। यस, तो अभी ये मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको डिस्कस किए, सेम इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कल देखने को मिलेंगे टेस्ट में। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा हूं फ्री में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आप अर्जुन सीरीज को परचेज कर सकते हो अच्छी प्रैक्टिस के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चाहिए जो प्रिपरेशन की है, सो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले आपको एक चीज और बता देता हूं कि ये जो फ्री प्लेलिस्ट है इसकी लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखी है प्रीवियस वाली, तो आप जाके जरूर चेकआउट कर लेना। दूसरी बात, अगर आप इमीडिएटली प्रिपेयर करना चाहते हो LTI माइंट्री के लिए या किसी भी कंपनी के लिए, तो आपको यहाँ पर अर्जुन सीरीज का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जो कि मॉक टेस्ट सीरीज होने वाली है। इसमें आपको सब कुछ देखने को मिलने वाला है, लाइक आपको क्वांट, रीजनिंग, वर्बल, रीडिंग, पैराग्राफ, गेमिफाइड असेसमेंट, सूडो कोड्स, DSA, CS फंडामेंटल, SQL, उप्स, इन सबके 1500 प्लस क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको विद सॉल्यूशन मिलेगा टाइमर के साथ। सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं, तो अगर आप चाहते हो टाइमर के साथ प्रिपरेशन करना, एंड ये मॉक टेस्ट आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेंगी, चाहे कोई भी कंपनी हो, LTI हो, कोई भी कंपनी हो, बहुत ज्यादा ये सीरीज आपकी हेल्प करेगी। सो अगर आप चाहो तो इसको परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट। इस सिंगल वीडियो में हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे 40 क्वेश्चंस, जिसमें 20 क्वेश्चन मिक्स के रहेंगे, एंड 20 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं DSA के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस होंगे DSA के, डोंट मिस दैम, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। विच नॉर्मल फॉर्म एलिमिनेट्स ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। देखो नॉर्मलाइजेशन से हमेशा से क्वेश्चंस आते रहे हैं, एक बार प्रॉपर्टीज पढ़ लेना, 1NF में क्या होता है, 2NF में क्या होता है, 3NF में क्या होता है, BCNF में क्या होता है। अभी कह रहा है विच नॉर्मल फॉर्म एलिमिनेट्स ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, तो जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है उसको हम रिमूव करते हैं 3NF में। सो इसलिए यहां पर इसका जो आंसर होगा वो होने वाला है 3NF, ओके। नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं। इन जावा व्हाट इज द डिफॉल्ट, और जूम कर देता हूं थोड़ा सा ना, अच्छे से दिख जाएगा आपको अब, ठीक है। इन जावा व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ बूलियन वेरिएबल। देखो अगर आप किसी जावा में अगर किसी बूलियन वेरिएबल को डिफाइन कर देते हो, तो उसकी
डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा फॉल्स। मतलब जो फॉल्स वैल्यू होती है, क्योंकि बुलियन में दो ही वैल्यूज हो सकती है, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर आप उसको डिफॉल्ट डिक्लेयर करते हो तो उसकी वैल्यू हमेशा फॉल्स रहेगी। आपको जो ट्रू वैल्यू है वो आपको खुद से डिक्लेयर करनी पड़ती है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फीफो, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अगर आप देखोगे तो फीफो क्या मतलब होता है कि जो एलिमेंट, जैसे सपोज हमने कुछ एलिमेंट इंसर्ट किए लाइक 1 2 3, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है कि सबसे पहले हमने 1 इंसर्ट किया है तो 1 ही आउट होगा। और ये अगर आप देखोगे तो एक क्यू का सीक्वेंस होता है, इसलिए इसका आंसर होगा क्यू, क्योंकि जो क्यू है वो यहां पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को सपोर्ट करती है। विच एसक्यूएल कमांड इज यूज टू डिलीट अ टेबल स्ट्रक्चर परमानेंटली। तो ये ध्यान से समझो, इसमें अगर आप देखोगे तो ड्रॉप भी दिया है और डिलीट भी दिया है और ट्रंकेट भी दिया है। सपोज अगर आपने ट्रंकेट यूज किया तो ट्रंकेट क्या करेगा, ट्रंकेट में आपका स्ट्रक्चर तो रहता ही है, बट जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो यहां पर डिलीट हो जाते हैं। बट इसमें लिखा है कि हमें टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो भी रिमूव करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ड्रॉप। अगर आप ड्रॉप यूज करोगे तो यहां पर टेबल का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो भी यहां पर रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इन सी प्लस प्लस फंक्शन ओवरलोडिंग इज एग्जाम्पल ऑफ। सो फंक्शन ओवरलोडिंग जो होता है वो किस चीज का एग्जाम्पल होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जो ओवरराइडिंग है वो आता है यहां पर आपका रन टाइम में, और जो फंक्शन ओवरलोडिंग है वो यहां पर कंपाइल टाइम में डिसाइड हो जाता है कि कौन सा फंक्शन कॉल किया जाएगा बेस्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट्स, जो भी आप आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो उसके बेस पर, या पैरामीटर्स दे रहे हो। सो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का ये एग्जांपल हमें देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज फास्टेस्ट, रेम, कैश एंड हार्ड डिस्क और फ्लैश। सो सबसे जो फास्टेस्ट मेमोरी होती है वो होती है कैश, क्योंकि कैश का डायरेक्ट एक्सेस रहता है यहां पर, और फास्टेस्ट एक्सेस किया जा सकती है कैश मेमोरी को, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा कैश। ओके, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीसीपी, टीसीपी का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, रिलायबल। सो टीसीपी रिलायबल नहीं है ऐसा तो नहीं है। कनेक्शन ओरिएंटेड, तो टीसीपी एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। एरर चेकिंग, तो एरर चेकिंग भी यहाँ पर हो जाती है। कनेक्शन लेस, सो यस, जो टीसीपी है वो यहाँ पर कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, इसकी बात हमने लास्ट वीडियो में भी करी थी। तो जो कनेक्शन लेस है वो यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। नेक्स्ट वीडियो को डिस्कस, नेक्स्ट सॉरी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट इन पाइथन, x इक्वल्स टू 1 2 3। सो x की वैल्यू हमने एक लिस्ट में डाली है 1 2 3, अब हम कर रहे हैं x मल्टीप्लाई बाय 2। सो ये हो जाएगा 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 1 2 3 दोबारा से रिपीट हो जाएगा, बिकॉज दिस इज लिस्ट मल्टीप्लीकेशन। लिस्ट मल्टीप्लीकेशन मतलब जो भी लिस्ट है उस लिस्ट को आपको मल्टीपल करना है। अगर ये मल्टीप्लाई बाय 3 होता तो 3 टाइम्स ये लिस्ट रिपीट हो जाती, तो 1 2 3 इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, विच इज द विच की यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल। सो इसमें अगर आप देखोगे तो अगर आप यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हो किसी रो को, तो इसमें कैंडिडेट की भी दी है, सुपर की भी दी है, लेकिन अगर आप यूनिकली आइडेंटिफिकेशन की बात करो, मैं मानता हूं बाकी कीज के भी बारे में, बट उसको जो हम प्राइमरी की सेट करते हैं उसी को हम यूज करते हैं एज अ यूनिक रो टू आइडेंटिफाई, मतलब यूनिक की टू आइडेंटिफाई द यूनिक रोज। ओके, सो इसका आंसर होने वाला है प्राइमरी की। ओके, इन ओएस थ्रैशिंग अकर्स व्हेन। अब देखो थ्रैशिंग का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पेजिंग और थ्रैशिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी टाइम यहां पर एमसीक्यूज में आते हैं। अब थ्रैशिंग क्या होता है, देखो थ्रैशिंग बेसिकली तब होती है जब आपकी पेजिंग हो रही है, बट जो पेजिंग की स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा हाई चली जाती है, मतलब आपने पेजेस काफी ज्यादा कर दिए एंड ज्यादा से ज्यादा यहां पर पेजिंग पॉसिबल हो रही है, उस टाइम में यहां पर थ्रैशिंग की प्रॉब्लम आती है और उसी को हम थ्रैशिंग बोलते हैं। तो यहां पर टू मच पेजिंग हैपेंस इसका आंसर होगा। ठीक है, विच डिवाइस कनेक्ट्स टू डिफरेंट नेटवर्क्स, दो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपको कनेक्ट करना है, तो राउटर का हम यूज करते हैं। सिंपल आंसर है, स्विच नहीं होता, हब नहीं होता, रिपीटर नहीं होता, राउटर इसका आंसर है। बाकी इन सब के बारे में पढ़ जरूर लेना कि स्विच क्या होता है, हब क्या होता है, राउटर क्या होता है, रिपीटर क्या होता है। ओके, इन जावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैपर क्लास। अब रैपर क्लास आपको पता होगा कि बेसिकली जो अपन के डेटा टाइप्स हैं उनकी जो रैपर क्लास है उसके बारे में बात हो रही है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैपर क्लास, तो अगर आप देखोगे तो इंटीजर,
इसमें अगर आप देखोगे आई कैपिटल है, और इंटीजर से अपन क्या इंट क्रिएट करते हैं टाइप में, राइट। सो जो इंट होता है वो तो टाइप होता है, और इंटीजर जो होती है वो क्लास होती है, तो इंटीजर तो रैपर क्लास है। डबल का भी सेम है, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे तो डी कैपिटल है, तो कैपिटल का यहाँ पर काफी फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर ये भी आपकी रैपर क्लास हो गई, फ्लोट भी आपकी ये रैपर क्लास है। स्ट्रिंग का यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एस स्मॉल है, सो स्ट्रिंग ऐसे लिखा हुआ है, एंड ये आपकी जो है ये रैपर क्लास नहीं होगी, ये ये आपका एक डायरेक्ट फंक्शनलिटी आपको देखने को मिलने वाली है। विच एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर शॉर्टेस्ट पाथ इन ग्राफ, तो ये तो सबको पता है, थ्योरी क्वेश्चन है, डिजिस्ट्रा। सो डिजिस्ट्रा एल्गोरिथम हमकी होती है शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए ग्राफ में, ठीक है। बाकी के एल्गोरिथम्स को हम नहीं यूज करते, डिजिस्ट्रा माना जाता है शॉर्टेस्ट पाथ इन ग्राफ के लिए हम यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जांपल ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी, अगर आप सी में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करना चाहते हो तो हम मैलॉक को यूज करते हैं, ये चीज याद रखना, मैलॉक का यूज करते हैं हम सी में, ओके। और इस प्रकार से अगर आप चाहो तो रन टाइम में यहाँ पर मेमोरी एलोकेट करना चाहते हो अगर किसी चीज की, जैसे जो प्रोग्राम में कुछ मेमोरीज है वो तो है ही, बट अगर आप कंपाइलेशन के टाइम पे चाहते हो कि रन टाइम पे कोई मेमोरी एलोकेट हो, तो अपन मैलॉक फंक्शन का यहाँ पर यूज करते हैं। विच एसक्यूएल कीवर्ड इज यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट, तो सॉर्ट नहीं यूज करते हम, ऑर्डर बाय यूज करते हैं, करेक्ट। जब हम एसक्यूएल क्वेरी को रन करते हैं तो लास्ट में हम लिख देते हैं ना ऑर्डर बाय, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ऑर्डर बाय जैसे सपोज नेम है, सो हम लिख देते हैं ना ऑर्डर बाय ऐसे करके नेम, एंड फिर आप असेंडिंग और डिसेंडिंग भी यूज कर सकते हो, ए एस सी या डी एस सी, उससे अपन ऑर्डरिंग यहां पर डिसाइड कर लेते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑर्डर बाय। विच ओएस कॉन्सेप्ट अलाउज मल्टीपल प्रोसेस टू शेयर सीपीयू टाइम, स्पूलिंग, शेड्यूलिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड वर्चुअलाइजेशन। स्पूलिंग तो नहीं हो सकता, वर्चुअलाइजेशन नहीं हो सकता, शेड्यूलिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग। विच ओएस कॉन्सेप्ट अलाउ मल्टीपल प्रोसेस टू शेयर सीपीयू टाइम, आई थिंक थोड़ा सा मिक्स हो सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मल्टी प्रोग्रामिंग यस इसका आंसर होगा इन डेप्थ में, बट अगर इस प्रकार का कोई ऑप्शन ना हो तो आई थिंक शेड्यूलिंग भी हो सकता है, बट हाँ मल्टी प्रोग्रामिंग रहेगा इसका। बिकॉज शेड्यूलिंग में हम क्या करते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग का काम क्या है कि जैसे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, देखो ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम है जितना हमने पढ़ा हुआ है, मल्टी प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है कि देखो ओएस जो है वो अपना फ्री ना रहे, इस चक्कर में जैसे सपोज हम आईओ ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ बैकएंड पे कोई प्रोग्राम रन करता रहे जिससे ओएस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाए, राइट। तो उसको हम बोलते हैं यहां पर मल्टी प्रोग्रामिंग, एंड इसमें लिखा है टू शेयर द सीपीयू टाइम, ओके। सो यस मल्टी प्रोग्रामिंग वो चीज होगी, बिकॉज सीपीयू का जो टाइम है वो हम शेयर कर सकते हैं, जैसे कि जो प्रोसेस है वो यहाँ पर आईओ की प्रोसेस भी चल रही है, साथ साथ में हमारी यहाँ पर कोई बैकएंड में कोई और प्रोसेस भी चल रही है, ओके। सो दैट्स मल्टी प्रोग्रामिंग। बट जो शेड्यूलिंग है वो हमारी काम करती है इसी मल्टी प्रोग्रामिंग को एफिशिएंट करने के लिए। एफिशिएंट मतलब जो बेसिकली जैसे सपोज अपन के डिफरेंट डिफरेंट टास्क है, सो टास्क किस ऑर्डर में यहां पर प्रोसेस होना चाहिए, तो वो शेड्यूलिंग होती है, राइट। सो इसका आंसर मल्टी प्रोग्रामिंग ठीक है, बट हाँ मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया इसमें। सो मल्टी प्रोग्रामिंग ठीक है सीपीयू का टाइम शेयर करने के लिए, बिकॉज मल्टी प्रोग्रामिंग का वही मतलब होता है कि अपन डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोसेस होती हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसको अपन रन कर पाए, जिससे यहाँ पर यूटिलाइजेशन हो पाए ऑपरेटिंग सिस्टम का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई प्रोसेस इन ओएस, तो ये तो सी है, पीआईडी, पीआईडी होता ही है प्रोसेस आईडी, तो इसका आंसर तो पीआईडी होने वाला है। पीसीबी तो अपन का प्रोसेस कंट्रोलर ब्लॉक होता है जिससे अपन ट्रैक कर सकते हैं, टीआईडी भी नहीं होगा, यूआईडी भी नहीं होगा, तो पीआईडी आंसर होगा। विच पोर्ट इज डिफॉल्ट बाय एचटीटीपी, तो इसका तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता ही होगा, तो एचटीटीपी का जो डिफॉल्ट पोर्ट होता है वो हम 80 यूज करते हैं, करेक्ट। सो 80 यहाँ पर पोर्ट नंबर रहता है डिफॉल्ट एचटीटीपी के लिए, इसको हम चेंज कर सकते हैं लेकिन, सो इस 80 रहता है। इन ऊप्स एब्स्ट्रैक्शन मींस, एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब बाइंडिंग डेटा एंड फंक्शनल टुगेदर नहीं, ये इनकैप्सुलेशन होता है। इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन में काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्शन हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग ओनली फंक्शनैलिटी होता है। यूजिंग द सेम फंक्शन नेम विद डिफरेंट पैरामीटर्स, ये ओवरलोडिंग होता है। डिराइविंग क्लास फ्रॉम एग्जिस्टिंग वंस, जैसे हम क्लास को डिराइव करना चाहते हैं तो ये तो आपका इनहेरिटेंस में आ जाएगा, ठीक है। सो ये अगर आप देखोगे तो इसका आएगा हाइडिंग द इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग ओनली फंक्शनैलिटी। अब हम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को, यहां से आपको मजा आएगा वीडियो में और ज्यादा, तो ध्यान से देखते जाना। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं डीएसए के यहाँ पर हमने जो अर्जुन सीरीज है उसमें 200 क्वेश्चंस प्रोवाइडेड हैं 10 मॉक टेस्ट में।
तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। सूडो कोड्स के अगर आप देखोगे तो 80 क्वेश्चंस प्रोवाइडेड है, और सीएस फंडामेंटल्स के भी 12 आवर्स के मॉक टेस्ट प्रोवाइडेड है, सारे सब्जेक्ट्स कवर करके, और बाकी के जो क्वांट वगैरह है, रीजनिंग है, वर्बल है, सब कुछ कवर्ड है। तो आप इसको परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अर्जुन सीरीज की काफी अच्छी मॉक टेस्ट आपको ये देखने को मिलेगा। बाकी फ्री प्लेलिस्ट तो हम रिकॉर्ड कर ही रहे हैं, तो ये फ्री प्लेलिस्ट है एलटीआई माइंट्री की। सो स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट। विच डेटा स्ट्रक्चर वर्क ऑन लीफो? लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो लास्ट इन अगर आप देखोगे तो स्टैक ऐसे वर्क करता है, सबसे पहले यहाँ एलिमेंट आएगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, जो सबसे लास्ट में इंसर्ट किया है वो सबसे पहले बाहर जाता है, इसलिए लीफो स्टैक फॉलो करता है। ओके, तो स्टैक करेगा लीफो फॉलो, तो लीफो के लिए यहाँ पर स्टैक आंसर होगा। विच ट्रेवर्सल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री गिव्स सॉर्टेड ऑर्डर? ओके, सो इसमें लिखा है बीएसटी का सॉर्टेड ऑर्डर क्या देगा। देखो बीएसटी में क्या होता है कि ये अपन का सपोज बाइनरी सर्च ट्री है। ओके, अब इस बाइनरी सर्च ट्री में आपको पता होगा जो लेफ्ट नोड है वो आपका सबसे स्मॉल वैल्यू होता है, फिर रूट वाला होगा और फिर राइट वाला होगा, मतलब इंक्रीजिंग वैल्यू में। और अगर आप इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को देखोगे वो तो हमेशा हमने डिस्कस किया है, ऐसे वर्क करता है, लास्ट से स्टार्ट होगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा, फिर यूं, इस प्रकार से इन ऑर्डर जो ट्रेवर्सल होता है वो यूं इस ऑर्डर में वर्क करता है। जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होगा वो बीएसटी में हमेशा सॉर्टेड हमें जो होता है ऑर्डर देता है, तो इसका आंसर होगा इन ऑर्डर। ओके, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इन ऑर्डर। What is the worst case time complexity of linear search? तो सपोज हमारा कोई एलिमेंट 1 2 3 4 5, ये सपोज हमारा एरे है। वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी कि हमारा 5 एलिमेंट हमें सर्च करना है, हमें स्टार्टिंग से सर्च कर रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ एन, ये हमारी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी फॉर लीनियर सर्च। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम? मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट तो स्टेबल है, बिकॉज अगर आप देखोगे जब हम डिवाइड भी करते हैं तो सारे एलिमेंट्स जो आपके रहेंगे वो स्टेबल रहेंगे। बबल सॉर्ट भी स्टेबल एल्गोरिथम होती है। क्विक सॉर्ट नहीं। तो क्विक सॉर्ट में हम हमेशा पिवट लेते हैं और पिवट के हिसाब से यहाँ पर सॉर्टिंग होती है, और ये एल्गोरिथम जो है वो हमारी स्टेबल सॉर्टिंग में नहीं आती है, तो इसका आंसर होगा क्विक सॉर्ट, बिकॉज जो इसमें ऑर्डर है वो यहाँ पर चेंज हो सकता है, लेफ्ट और राइट में दोनों में एलिमेंट जो छोटे बड़े हैं वो ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। विच डेटा स्ट्रक्चर इज बेस्ट सुटेड फॉर इंप्लीमेंटिंग रिकर्जन? तो रिकर्जन तो हमेशा स्टैक का यूज करके ही हम करते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होने वाला है? स्टैक, क्योंकि अगर आप रिकर्जन को देखोगे तो रिकर्जन में सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि सपोज आप एक एग्जांपल ऑफ फिबोनाची सीरीज को आप कॉल कर रहे हो, तो सबसे पहले फिबोनाची ऑफ 5 कॉल होगा, तो स्टैक में नीचे स्टोर हो जाएगा, फिर फिबोनाची ऑफ 4 स्टोर होगा, फिर 3 होगा, इसी प्रकार से फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। फिर जब आंसर रिटर्न करना स्टार्ट करता है ना, तो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो सबसे पहले इसका आंसर रिटर्न होगा, तो हम नीचे जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे। तो जो इसका लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला ऑर्डर है वो काफी ज्यादा हेल्प करता है, इसलिए आंसर होगा स्टैक। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ बाइनरी सर्च ट्री ऑफ एच? सो अगर एच हाइट का बाइनरी सर्च ट्री है तो उसका जो मैक्सिमम नोड्स होंगे वो कितने होंगे? तो आप इसको ऐसे ही समझ सकते हो। तो अगर आप देखोगे तो बेसिकली सपोज यहाँ पर केवल एक नोड है, तो एक नोड है तो इसकी हाइट कितनी हो गई? 1 1। सो अगर आप देखोगे तो ये जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल सही वर्क करेगा, विच इज 2 मल्टीप्लाई बाय h माइनस 1, विच इज 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2 माइनस 1 विच इज 1। तो अगर एक हाइट है तो कितने नोड हो गए? 1। सपोज 2 हाइट है तो मैक्सिमम नोड्स कितने हो गए यहाँ पर? 3। इसमें पुट करो जरा। So 2 multiply by 2 minus 1. So 4 minus 1 is 3. So 2 multiply by h minus 1, ये इसका आंसर होगा। तो मैक्सिमम नंबर जो ऑफ नोड्स जो होंगे बाइनरी ट्री में हाइट h में वो होंगे 2 multiply by h minus 1। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर बाकी के साथ। सो अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर रहेगा विच डेटा स्ट्रक्चर्स अलाउ इंसर्शन एंड डिलीशन एट द बोथ एंड्स। ठीक है, सो ये कह रहा है कि एक्चुअली ओके, ये टू एक्चुअली ये इस क्वेश्चन में दोबारा डिस्कस करना चाहूंगा। ये एक्चुअली 2 मल्टीप्लायर नहीं होगा जो हमने फॉर्मूले से डिस्कस किया, क्योंकि अभी जस्ट मेरे दिमाग में आया। हम इसको 3 से करके देखेंगे तब हमें एक्चुअल पता पड़ेगा। हाइट 3 रखते हैं इसकी एक बार। सो ये पावर होने वाला है एक्चुअली यूं। ओके, सो 3 हाइट में अगर आप देखोगे तो 3 हाइट में टोटल कितने नोट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। सो ये मल्टीप्लाई नहीं है एक्चुअली, ये पावर होगा। सो 2 टू द पावर 3 होगा माइनस 1। सो विच इज अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 1, सो हो जाएगा 7। सो ये 2 टू द पावर h होगा माइनस 1। तो मैं मतलब क्योंकि मुझे सही बताऊं तो मुझे एक्चुअल में ऐसे फॉर्मूला नहीं था तो मैं चेक कर रहा था। सो ये 2 टू द पावर h होगा, तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा 7 आएगा। तो हाँ, सो 2 टू द पावर h माइनस 1 होगा, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये पावर होगा
3 से करके देखेंगे तो हमें पता पड़ेगा, पहले मल्टीप्लाई से चल रहा था 2 हाइट तक, बट ये एक्चुअली पावर होने वाला है बिकॉज 3 पे मल्टीप्लाई गलत हो जाएगा, सो इट विल बी 2 टू द पावर 3 माइनस 1, सो दिस वुड बी अवर आंसर। विच डेटा स्ट्रक्चर अलाउ इंसर्शन एंड डिलीशन एट बोथ एंड्स? सो क्यू तो ऐसा नहीं कर पाओगे आप, स्टैक में भी नहीं कर पाओगे इंसर्शन डिलीशन। डी क्यू, सो डी क्यू का मतलब क्या होता है? डबल एंडेड क्यू। अब डबल एंडेड क्यू का क्या मतलब है? डबल एंडेड क्यू का मतलब क्या है? आप इंसर्शन और डिलीशन बोथ साइड पे कर पाओगे, तो डबल एंडेड क्यू होती है डी क्यू, तो इसका आंसर होने वाला है डी क्यू। विच एल्गोरिथम इज यूज टू डिटेक्ट साइकिल इन ग्राफ? बीएफएस बिल्कुल नहीं है। डिजक्स्ट्रा शॉर्टेस्ट पास की होती है और क्रुस्कल भी नहीं होती। इसका आंसर होगा डीएफएस। हम डीएफएस जो एल्गोरिथम होती है उसको हम यूज कर सकते हैं अगर सपोज कोई ग्राफ है लाइक दिस वन, ठीक है, और अगर आप देखोगे तो इसमें यहाँ पर साइकिल है, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए आप डेप्थ फर्स्ट सर्च का हम यूज कर सकते हैं। और आपने एक एल्गोरिथम पढ़ी भी होगी जिसमें हम एक पॉइंटर को एक पॉइंट चलाते हैं, दूसरे पॉइंटर को हम 2 पॉइंट चलाते हैं, करेक्ट, एंड देन वो जाके एक सेम पॉइंट पर मिल जाते हैं। सो वो चीजें हम करते हैं, तो डेफिनेटली इसका जो आंसर है वो यहाँ पर डीएफएस होने वाला है, क्योंकि हम एक एंड में यहाँ पर मूव करते चले जाते हैं, तो डीएफएस इसका आंसर होगा, विच इज डेप्थ फर्स्ट सर्च। विच ट्रेवर्सल यूजेस अ क्यू इन ऑर्डर? इन ऑर्डर नहीं, इन ऑर्डर नहीं होता, क्यू यूज नहीं करता। प्री ऑर्डर नहीं, पोस्ट ऑर्डर नहीं, लेवल ऑर्डर, यस। सो लेवल ऑर्डर का ट्रेवर्सल क्या होता है? जैसे सपोज ये हमारा ट्री है, तो इसको आप किसी भी लेवल बाय लेवल ट्रेवर्स करोगे, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बाय लेवल आप इसको ट्रेवर्स करते हो, और इसके लिए हम क्यू में यहाँ पर स्टोर करते हैं अपने डेटा को, सो नोट्स को। सो यहाँ पर जो क्यू होगा वो इसका यहाँ पर आंसर होने वाला है। सो सॉरी, जो लेवल ऑर्डर है वो इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। देन बात कर लेते हैं द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग अ बैलेंस बीएसटी। सो अगर एक बीएसटी बैलेंस्ड है तो उसकी जो हाइट होगी बेसिकली वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है सर्चिंग के लिए। सो ऑर्डर ऑफ लॉग एन इसका आंसर होने वाला है, करेक्ट। बिकॉज अगर अगर आप देखोगे ना, तो जो बैलेंस्ड बीएसटी होगा उसमें वैसे तो आप यहां पर ऑर्डर ऑफ 1 में मूविंग कर पाओगे, बट जो उसकी हाइट होगी वही यहां पर उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है, तो ऑर्डर ऑफ लॉग एन इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। विच हैशिंग टेक्निक्स रिजॉल्व कॉलिजन बाय लिंकिंग एलिमेंट? तो देखो, कॉलिजन मतलब क्या हो गया कि आप हैशिंग कर रहे हो और पर्टिकुलर किसी सेम पोजीशन पे ज्यादा एलिमेंट्स स्टोर हो गए, तो आपकी जो हैशिंग है वो फेल हो जाएगी, क्योंकि पुराने आपके जो एलिमेंट्स है वो शायद लॉस्ट हो जाए, करेक्ट। तो ये कह रहा है कॉलिजन बाय लिंकिंग द एलिमेंट्स, तो आप वन बाय वन एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से लिंक कर सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं चेनिंग। चेनिंग बोलते हैं हम उसको, ठीक है। तो ये चेनिंग का कॉन्सेप्ट होता है, हो सकता है आपने पढ़ा भी होगा कॉलिजन वाले में, तो इसका आंसर होगा चेनिंग। व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट? तो मर्ज सॉर्ट में हम क्या करते हैं, ये हमारा एरे है, इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, फिर आगे आने वाले को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। बट जब हम उसको फिर कंबाइन करते हैं, मर्ज करते हैं, तो हमें एक एडिशनल डेटाबेस की जरूरत पड़ती है, सॉरी एडिशनल डेटा की जरूरत पड़ती है, डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, तो ऑर्डर ऑफ एन का स्पेस जो है वो इसमें लगता है, सो इसलिए ऑर्डर ऑफ एन इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ठीक है। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन इंप्लीमेंटिंग बीएफएस? बीएफएस इंप्लीमेंट करने के लिए आई थिंक क्यू ही होगा, बिकॉज बीएफएस अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो क्यू में ही हम स्टोर करते हैं, सो यस क्यू इसका आंसर होने वाला है, क्योंकि जो बीएफएस है उसमें हम सारे अपने नाइबर्स को यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं, तो क्यू इसका आंसर होगा। द नंबर ऑफ एजेस इन अ कंप्लीट ग्राफ विथ एन वर्टाइसेस, ओके। सो ये कह रहा है नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी अगर कंप्लीट ग्राफ है और एन वर्टाइसेस है, तो इसका फॉर्मूला होता है एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस 1 डिवाइड बाय 2, तो ये इसका आंसर होने वाला है। अगर आप हमारा ग्राफ कंप्लीट है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट ग्राफ, अगर कंप्लीट होगा ग्राफ एन वर्टिसेस के साथ, तो यहाँ पर एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस 1 डिवाइड बाय 2 इसका फॉर्मूला होता है। विच इज द बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट? सो क्विक सॉर्ट की तो ओ ऑफ एन लॉग एन ही होती है, लास्ट वीडियो में हमने एवरेज केस के बारे में भी बात किया था, तो वही रहेगी, ठीक है। सो बेस्ट भी उसकी यही रहेगी, और एन लॉग एन। इन अ मिन हीप द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज ऑलवेज एट? देखो मिन हीप का मतलब क्या है, मिन हीप मतलब मिनिमम एलिमेंट जो होगा वो हमेशा टॉप पर रहता है। अब ये कह रहा है इन अ मिन हीप द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज ऑलवेज एट रूट, क्योंकि अगर आप मिन हीप देखोगे, आपने अगर कोई मिन हीप सपोज इंप्लीमेंट किया, तो जब तक जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो टॉप पर नहीं आ जाएगा, तब तक हम जो क्या करते हैं, स्वैपिंग करते रहते हैं, जब तक जो भी हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो टॉप पर नहीं आ जाता।
तो जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो कहां पर होगा, रूट पर होगा, तो रूट इसका आंसर होने वाला है। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू इंप्लीमेंट अंडू ऑपरेशंस, ठीक है। तो अंडू ऑपरेशंस के लिए अगर आप देखोगे तो क्या होता है कि अगर आप प्रीवियस एक्टिविटी को देखोगे, एडिटर्स की बात हम कर रहे हैं, तो हमेशा जो न्यू एक्टिविटीज है वो यहां पर इस प्रकार से स्टोर होती है, जैसे एक्टिविटी ए, ओके, फिर एक्टिविटी, ये सपोज आपकी पहली एक्टिविटी है जो आपने करी। अब आपने दूसरी एक्टिविटी करी, उसको हम बोलेंगे एक्टिविटी बी, जो इसके ऊपर स्टोर होगी। फिर आपने अगली एक्टिविटी करी तो वो होगी एक्टिविटी सी, जो कि यहां पर स्टोर होगी। अब सपोज ये जो सी वाली एक्टिविटी है उसको आपको अंडू करना है, तो इसको हम डिलीट करेंगे और प्रीवियस स्टेट में आ जाएंगे, विच इज बी। तो ये तो आपको पता ही है, ये तो लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला चीज हो गया, तो ये किस में होगा, स्टैक में। तो इसलिए इसका आंसर क्या होने वाला है, स्टैक। Which is the time complexity for inserting an element at the end of array amortized? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब हम बात करते हैं amortized array के बारे में, इसका मतलब होता है डायनेमिक एरे। डायनेमिक एरे, बिकॉज अगर आप वैसे देखोगे तो एरेज होते हैं वो फिक्स लेंथ के होते हैं, बट इनने क्लियरली मेंशन किया है amortize। amortize मतलब डायनेमिक एरे। तो अगर आप एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हो किसी डायनेमिक एरे में, तो वो होगा ऑर्डर ऑफ 1। आपके पास लास्ट पॉइंटर रहता है और आप इंसर्शन एंड में कर पाओगे विद द कांस्टेंट टाइम। विच ग्राफ रिप्रेजेंट द एफिशिएंसी फॉर स्पार्स ग्राफ? स्पार्स ग्राफ मतलब क्या होगा कि जो कनेक्शंस हैं वो कम है। सो इसके लिए तो एडजेसेंसी लिस्ट जो होगी वो अच्छी होगी, बिकॉज अगर आप एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्रिएट करोगे तो जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है वो तो काफी बड़ा हो जाएगा। बट अगर आप एडजेसेंसी मैट्रिक्स को ऐसे क्रिएट करोगे सपोज, ठीक है, अब इसमें आप देखोगे तो मैक्सिमम जो मैट्रिक्स है उसमें जो वैल्यूज होंगी वो जीरो ही होंगी, क्योंकि स्पार्स है ग्राफ, तो मैक्सिमम जो वैल्यूज होंगी वो जीरो होंगी, थोड़े बहुत वंस होंगे, एक दो तीन। तो इतना बड़ा अगर आप मैट्रिक्स यूज करोगे उसके लिए तो काफी ज्यादा स्पेस कंज्यूम होगा। इसलिए जो एडजेसेंसी लिस्ट है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो इसलिए एडजेसेंसी लिस्ट इसका आंसर होगा। विच ट्रेवर्सल ऑफ अ ट्री इज यूज्ड इन एक्सप्रेशन एवेल्यूएशन? सो अगर आप एक्सप्रेशंस को एवेल्युएट करना चाहते हो तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, इसके लिए हम पोस्ट ऑर्डर करते हैं यूज। और पोस्ट ऑर्डर आपको पता होगा क्या होता है, जैसे एक्सप्रेशन इवेल्यूशन मतलब क्या होता है, जैसे 3 4 माइनस ऐसे अपन आपने करे होंगे सॉल्व, तो इसमें क्या करते हैं अपन, एलिमेंट फर्स्ट को पकड़ते हैं, सेकंड को पकड़ते हैं, फिर माइनस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पोस्ट ऑर्डर, ये हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं। सो यहाँ पर हमारे ये 20 क्वेश्चन खत्म होते हैं डीएसए के। 40 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में सॉल्व करे हैं, बाकी मॉक टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी विद मल्टीपल क्वेश्चंस, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो क्विकली। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।